resources means classification of resources, or we can say types of resources. Basically we can say that we are having two types of resources, one that is natural resource and another one that is human resource. तो सबसे ज़्यादा अगर अवेलेबिलिटी है अगर रिसोर्सेज की इन्वायरमेंट में तो वो हमारे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है. ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत लिमिटेड है, राइट. सो ह्यूमन रिसोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट of resource, but mainly means we are developing all kind of things with the means we can say with the in relationship with the natural resources. So several type of natural resources we are having, several type of human resources we are having. Like if we talk about human resource, we are having two important resource, structures and institution. जो भी हम building बना रहे हैं, जो भी हम institutions develop कर रहे हैं, वो सब किस type के, वो man made resource है, वो सब ह्यूमन रिसोर्स है. एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी दैट मेनली डिपेंड ऑन द ह्यूमन बीइंग. वो स्ट्रक्चर या फिर जो इंस्टीट्यूशन हम बना रहे हैं जो किस टाइप की क्वांटिटी का है, कितनी हम क्वांटिटी हम कह सकते हैं उसकी अवेलेबल है और किस टाइप की क्वालिटी का वो है. सो दैट बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मैन मेड रिसोर्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल ह्यूमन रिसोर्स. Now renewable resource means natural resource. We are having two categories, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resource means which can be renewed again and again, which is basically in the continuous process. जो continuity में चल रहा है, flow में, वो हम कह सकते हैं वो हमारे renewable resource है. और renewable resource को दूसरा एक और जो है वो हमारा biological है. तो biological में आपके flora and fauna दोनों आ जाते हैं, right. So natural vegetation and wildlife. So it is basically related to flora species and this is basically related to fauna species, right. Then non-renewable resources. Non-renewable resources means we are having again two types, recyclable and non-recyclable. Recyclable resources are those resources which we can say that some of the metals we are having, we can mold those metals in any shape. मतलब उनको हम किसी भी shape में बार बार हम change कर सकते हैं. So that are basically we can classified as recyclable. दूसरा हमारा जो resource है वो है non-recyclable resources, जो दोबारा जिनको हम recycle नहीं कर सकते, जैसे fossil fuels, जैसे हम कह सकते हैं कोल या फिर पेट्रोल, जो एक बार खत्म हो गया वो दूसरी बार हम उसको यूज नहीं कर सकते, फिर हमें दोबारा दूसरा ही कोल यूज करना पड़ेगा. सो दोज रिसोर्सेज दे आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज. सो दिस वाज बेसिकली द इंपॉर्टेंट वी कैन से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. देन वी आर हैविंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देखिए इन रिसोर्सेज को हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया है एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. द फर्स्ट वन दैट वी कैन से बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. देन बेस्ड ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी आर हैविंग अगेन टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. देन बेस्ड ऑन ऑनरशिप, मतलब मालिकाना आधार पर, बेस्ड ऑन ऑनरशिप वी आर हैविंग इंडिविजुअल, community, national and international resources. Then based on the status of development, again we are having four types of resources, potential, developed, stock and reserves. So this is basically we can say the important classification of resources. Now individually we have to discuss all these classification of resources. So first one, that is on the basis of origin. On the basis of origin we are having biotic and abiotic. Biotic resources comprises of living organisms or we can say living things, and abiotic resources they basically comprise or basically they are made up of non-living organisms. मतलब जिनमें कोई जीव नहीं होता वो हमारे abiotic होते हैं और जिनमें जीव होता है वो हमारे biotic होते हैं. तो जीव वाले आपके आ जाते हैं इसमें फ्लोरा और fauna species, they all comes under biotic resources, and fossil fuels and other things they all comes under abiotic resources. तो बायोटिक आप समझ गए होंगे जो लिविंग थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपके abiotic resources हैं. So on the basis of origin we are having two types of resources, biotic and abiotic. The next one, on the basis of exhaustibility we are having two types of resources, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources means which can be reproduced again and again by physical, chemical or mechanical process. They are basically called as renewable resources, and non-renewable resources have existed for a very long period, for example fossil fuels, right. तो यहाँ पर जैसे हम रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड चैप्टर के अंदर, वो सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो वाटर साइकिल के अकॉर्डिंगली या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अकॉर्डिंगली वो दोबारा रिन्यू हो जाता है, राइट. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे हम कोल का यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा तंदूर के अंदर हम कोल का यूज़ करते हैं तो उसको एक बार यूज़ करने के बाद वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. सो वी कैन नॉट कन्वर्ट दैट ऐश इनटू कोयल,
राइट अगर हम बाइक के अंदर, अगर हम गाड़ी के अंदर अगर हम पेट्रोल को यूज कर लेते हैं तो एक बार उसको यूज करने के बाद में दोबारा वो रिन्यू नहीं होता, हम दोबारा दूसरा पेट्रोल हमें भरवाना पड़ता है. सो दे कम्स अंडर नॉन फॉसिल फ्यूल्स, दे बेसिकली कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. राइट सो दीज वर बेसिकली मीन्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. मतलब एक तो जो बार बार रिन्यूड हो रहा है और एक जो रिन्यूड कभी नहीं हो रहा. राइट so they comes under non renewable resources. Right, then on the basis of ownership, on the basis of ownership, the first one which we are having, that is individual resource. Means suppose this pen is owned by me, so it is my individual resource. This shirt is owned by me, so this is my individual resource. जिसका मतलब हम कह सकते हैं जैसे हाउस या फिर कार, जो किसी उसका जिसका कोई पर्टिकुलर एक सिंगल ओनर होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स. सो रिसोर्सेज विच आर ओन्ड privately by individual, they are known as individual resources. Then community resources we are having. So community owned resources means जो पूरी society का जिसके ऊपर dominance होता है. So these are resources which are basically accessible to all members of the community, known as community owned resources. मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ऐसा रिसोर्स जिसको पूरी सोसाइटी यूज करती है कॉमनली, वो हम उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स. मींस उसके ऊपर किसी सिंगल पर्सन का डोमिनेंस नहीं होता, पूरी सोसाइटी का डोमिनेंस होता है. फॉर एग्जांपल ब्यूरेड पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, रोड्स, दे ऑल आर बेसिकली वी कैन से डिस्क्राइब्ड एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, जिन पे पूरी सोसाइटी का, या फिर पास्चर लैंड्स, वो पूरी सोसाइटी का उस पर कहीं ना कहीं डोमिनेंस होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं. बट इंडिविजुअल रिसोर्स का एक सिंगल पर्सन के डोमिनेंस होता है, तो उसको सिर्फ वही यूज कर सकता है. राइट, देन नेशनल रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्स. ये दोनों नेशनल रिसोर्स के पार्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रहता हूँ, पब्लिक पार्क भी इंडिया में, ठीक है, तो मेरे जितने भी रिसोर्स हैं वो इंडिया में, पब्लिक पार्क भी इंडिया में. सो वी कैन से दैट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. And one more means condition we are having in the national resource category, means whatever resources we are having from the coastline of the country, means till 12 nautical miles. मतलब हमारे जो resources हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये पेनिसुलर पार्ट है, ये हमारा इधर अरेबियन सी है, राइट, और इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है. तो इसके अंदर जो हमारा ये जो लैंड बॉडी है ये वाली, इससे 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब किसके पार्ट हैं? वो सारे नेशनल रिसोर्सेस के पार्ट हैं. 12 नॉटिकल माइल और यू कैन से 21.9 किलोमीटर्स इन द सी बॉडी. मतलब इस कोस्टल एरिया से इधर जितने भी हमारे, हम कह सकते हैं कि 21.9 किलोमीटर्स और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 22 किलोमीटर्स. तो मतलब 22 किलोमीटर तक ओशन बॉडी के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्स हैं कोस्ट लाइन से, वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? आपके नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं. जैसे इधर हमारा मुंबई हाई है, तो मुंबई हाई हमारा किस कैटेगरी में? नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में. तो नेशनल रिसोर्सेज मीन्स वी कैन से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच बेसिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर country. I hope you understand. The next one, that is basically on the basis of ownership, we are having international resources. So means no individual country can utilize these without the approval of international agencies. मतलब कोई भी country दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी परमिशन के बगैर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते. हम उनकी परमिशन से ही इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. और अगर ओशन बॉडी के अंदर आता है तो उसमें इसमें हम 200 नॉटिकल माइल हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज से, जो नेशनल रिसोर्स है उसके बियॉन्ड जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जितने रिसोर्सेज हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं. सो वी कैन यूज दैट इंटरनेशनल रिसोर्स विद द अप्रूवल ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी. जैसे हम ओपन स्काई को यूज करते हैं तो उसमें भी हमें परमिशन लेनी होती है. अगर हम सी बॉडी को यूज करते हैं तो उसमें भी हमें परमिशन लेनी होती है. अगर हम परमिशन नहीं लेते, दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एक्टिविटी. राइट, 200 नॉटिकल माइल और यू कैन से 360 किलोमीटर्स. राइट, तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. So these were the 4 important resources on the basis of ownership. Now the next we can say that classification of resource which we are having, that is on the basis of status of development. So on the basis of status of development, again we are having 4 types of resources. The first one, that is potential resource, means which is basically we can say potential resources are those resources who are having too much potential to satisfy our needs. Right, to satisfy our needs, we can say that these resources, they are having too much
importance, right? So potential resources, they are very important resources, means so many resources we are having like wind energy, solar energy, they are having potential to satisfy our needs, but we can say that we are means not able to use these resources just because of lack of technology. So means we can say that technology is the main reason, इसमें हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं. So potential resource, basically we can say that it is mainly available in several states. For example, we can say Rajasthan and Gujarat, we are having in these both states, we are having ample opportunities of solar energy as well as wind energy. So potential energy means we are having ample opportunities, means these resources are having too much potential to satisfy the needs of the country, but we are not able to use these resources just because of lack of technology. The next one that we are having, that is basically developed resources. Developed resources, they are basically, we can say, quality wise and quantity wise surveyed, that we are having ample opportunity of developed resources. For example, water, for example, we can say several kind of other resources, but we are not able to use these resources just because of lack of technology. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑन द बेस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो हमारी ये चार रिसोर्स हैं, चार में से तीन जो हमारे रिसोर्स हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड स्टॉक, ये तीनों हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. इनका बहुत ज़्यादा स्टॉक भी है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी है, इनमें इतनी कैपेबिलिटी भी है कि हमारी नीड्स को इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे एक रीज़न आएगा, दैट इज़ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से हम इन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. सो डेवलप्ड रिसोर्सेज मीन्स वी कैन से दैट दे आर क्वालिटी वाइज एंड क्वान्टिटी वाइज सर्वेड इन आर कंट्री, जिनका सर्वे हो चुका है ये कि ये डेवलप्ड है रिसोर्सेज, बट वी आर नॉट एबल टू यूज दीज रिसोर्सेज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. Then next we are having, that is stock. So we can say that means we are having ample opportunities of water resources, like we can say that on 70% earth surface we are having water resources. तो हमारी मतलब इतने हमारे पास में water resources की availability है, but we can say that it is having potential to satisfy the human needs, but again we can say that we are not able to use these kind of resources just because of टेक्नोलॉजी. अब देखिए वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, बट अगेन वी कैन से दैट वी आर नॉट एबल टू यूज दिस रिसोर्स प्रॉपरली बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. तो स्टॉक बहुत है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम इन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे. देन लास्ट वन, दैट इज बेसिकली रिजर्व्स. Now students, reserves, that is a very important resource. Means reserves means we can say that we are reserving several kind of resources for the future use, right? So we can say that some of the stock we are reserving for the future use. For example, जैसे हम कह सकते हैं हम फॉरेस्ट को रिजर्व कर रहे हैं, like according to नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 we are reserving our forest areas. हम क्यों रिजर्व कर रहे हैं? जिससे हमारी फ्यूचर में आने वाली डिमांड्स हमारी इजीली फुलफिल हो सकें. सो दीज कैन बी पुट टू गुड यूज इन द फ्यूचर. दैट्स व्हाई वी आर रिजर्विंग सेवरल resources for the future use, right? So reserve is, again we can say that it is very important resource on the basis of status of डेवलपमेंट. तो हम फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व कर रहे हैं, जिससे हमारे फ्यूचर में हमारी डिमांड्स फुलफिल हो सकें, या फिर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी डिमांड्स यहाँ पे इजीली फुलफिल हो सके. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द रिसोर्सेज, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट.